Hello dear students, welcome back to our channel. So before starting with our today's topic, let me remind you once again that if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Let's start with our today's session. So let's start with our today's topic, and that is fertilization. In our last lecture, we tried to understand that how a female gametophyte is produced, okay, how an ovum is produced, and in today's lecture we will try to understand that after a male gamete is produced and a female gamete is produced, they fuse together to form a zygote. Okay, अभी ये fertilization का process समझने से पहले you have to understand that what is the difference between sexual reproduction and fertilization. Actually दोनों के बीच में कुछ difference नहीं है. Fertilization is a part of sexual reproduction. Sexual reproduction involves what? Sexual reproduction involves two things. First, formation of gametes, and second, fusion of those gametes. तो जो पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो हमने देख लिया. हमने स्पर्म कैसे बनता है वो भी पढ़ा और हमने ओवम कैसे बनते हैं वो भी पढ़े. ठीक है, तो अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेकेंड स्टेप समझने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन. गैमेट्स आर रेडी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दे फ्यूज टुगेदर. इफ यू रिमेंबर दैट इन अवर लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ अ फीमेल गैमेट. मतलब क्या? हमने पढ़ा था, एक लास्ट लाइन पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दे बोथ गो हैंड इन हैंड. मतलब जब ओवम सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म आएगा और स्पर्म अपना सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte को देगा, तब सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज जो है, जो अरेस्टेड स्टेज पे था, मेटाफेज 2, वो रिज्यूम हो जाएगा. मतलब हमारा सेकेंडरी oocyte जो आधा बन के स्टॉप हो गया था, अरेस्ट हो गया था, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका पहले मियोसिस 2 कंप्लीट होगा. तो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए स्पर्म चाहिए और स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास आ गया है, मतलब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है. ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? Syngamy. Okay, this we have been studying since a long time now. Okay, let us read the introduction. Sexual reproduction primarily involves formation and fusion of gametes. As I said कि sexual reproduction में दो steps होते हैं. पहला formation of gametes और दूसरा fusion of gametes. So the first step is formation of gametes. Formation and fusion of gametes. So first step is formation of gametes and second step is fusion of gametes. Fertilization is the later process which involves fusion of the haploid male and female gametes resulting in the formation of a diploid zygote. मतलब sexual reproduction के जो दो stages हैं या steps हैं, पहला है formation of gametes, मतलब पहले male gamete बनेगा और female gamete बनेगी और उसके बाद ये दोनों फ्यूज होंगे. तो जब हेप्लॉइड मेल गैमेट और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो हमको क्या मिलेगा? हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड, n प्लस n विल गिव अस डिप्लॉइड, दैट इज 2n diploid zygote. Okay, like in other mammals, in humans the process of fertilization is internal and it usually takes place in ampulla. Okay, this we have studied that in mammals, especially in humans, where does this fertilization takes place? It takes place in a female body, in a female reproductive system. And where exactly? यूटेरस का जो फेलोपियन ट्यूब है, वो फेलोपियन ट्यूब का जो मिडल रीजन है, जो स्ट्रेट मिडल रीजन है, फेलोपियन ट्यूब का जो कर्व्ड रीजन होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला. द रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. द फर्टिलाइज्ड एग or zygote will develop into an embryo. Now this is a very basic step that once male gamete and female gamete have fused together to form a zygote, जैसे जैसे zygote को nourishment मिलेगा वैसे वैसे वो zygote क्या बनते जाएगा? embryo. And embryo will further develop to form what? fetus. So the zygote develops into embryo and this process occurs within the uterus. ये embryo implantation या जितना भी जो भी fertilization के बाद का जो भी step है, वो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस में. नेवर फॉरगेट दिस. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम. ओके, आई ऑलवेज प्रेफर लुकिंग एट द डायग्राम फर्स्ट बिकॉज दिस क्लैरिफाइज the concept a little bit. All right, so let us try to understand what is mentioned over here in the diagram. पहले ये वाला first part देखेंगे, what has been told over here. Okay, this is
ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टेज, मतलब ये जो राउंड स्ट्रक्चर है दैट इज द सेकेंडरी oocyte। वो क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है, जो ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे रिलीज हो गई है, ओवरी से निकल गई है, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ, ये सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 पे अटक गई थी अब वो रिलीज हो गई है। ओके, यू कैन वॉच इट इन अवर अर्लियर सेशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो सेकेंडरी oocyte हैज बीन रिलीज्ड। अब ये सेकेंडरी oocyte का अगर मियोसिस 2 कंप्लीट करना है तो इसको किसके साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, स्पर्म्स के साथ। तो ये जो साइड में आप सेल्स देख रहे हैं, ये जो टेल्स हैं, दीज आर द टेल्स ऑफ स्पर्म। विच आर दीज टेल्स? दीज आर द टेल्स ऑफ द स्पर्म्स एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte। ओके, आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte, मतलब ये स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के अंदर जाएंगे तब क्या होगा, द oocyte विल कंप्लीट मियोसिस 2। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्पर्म के पास ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 जो पहले अरेस्ट हो गया था अब वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या चीज है ऐसी स्पर्म के पास? सेंट्रियोल्स। क्योंकि मियोसिस 2 के कौन से स्टेज पे oocyte अटक जाता है? मेटाफेज पे। और मेटाफेज पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनल चाहिए? सेंट्रियोल, जो oocyte के पास नहीं है, जो स्पर्म oocyte को देगा। तो जैसे ही स्पर्म का कांटेक्ट होगा सेकेंडरी oocyte से, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा हमको मिलेगा एक रेडी मैच्योर फीमेल गैमेट, और यू कैन कॉल इट एज ओवम। ओके, so you get the oocyte completes the meiosis 2 and what do we get? We get the ovum and the other remaining part is known as the second polar body. यहाँ पर labeling देख लो, extracellular space, corona radiata of the secondary oocyte, zona pellucida, second meiotic division of oocyte। यहाँ पर क्या हो रहा है? second meiotic division हो रहा है, मतलब the nucleus is being separated। सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होके हमको क्या देंगे? 2 और पोलर बॉडीज देंगे। ओके, नाउ कम्स द स्टेप 2। व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2? स्पर्म एंड ओवम, लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट मोर। या, सो व्हाट हैपेंस इन सेकेंड स्टेप? द स्पर्म एंड द ओवम न्यूक्लियाई दे स्वेल। ये ओवम का न्यूक्लियाई है, ये स्पर्म का न्यूक्लियाई है, ये दोनों क्या हो गए हैं? स्वेल हो गए, फॉर्मिंग प्रो न्यूक्लियाई। दे बोथ स्वेल टू फॉर्म व्हाट? दे बोथ स्वेल टू फॉर्म प्रो न्यूक्लियाई। और सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियाई है, स्वेल होने से पहले वो जब इनकम्प्लीट स्टेज में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल, जो अब क्या बन गया है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बन गया है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ओके, एंड दीज आर द पोलर बॉडीज। ओके, नाउ कम्स द थर्ड स्टेप। ओके, सी व्हाट आर वी सीइंग कि स्पर्म आया सेकेंडरी oocyte के पास, उसने अपने सेंट्रियोल्स दिए तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया सेकेंडरी oocyte का। मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया तो हमको क्या मिला? हमको ओवम मिला और हमको सेकेंड पोलर बॉडी मिला। फिर आगे जाके ये सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया था, जो ओवम मिला था, उस ओवम के अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक सेकेंडरी oocyte का खुद का न्यूक्लियस और जो स्पर्म आया है अंदर उस स्पर्म का न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस स्वेल होके क्या बन गए हैं? प्रो न्यूक्लियस बन गए हैं। अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों प्रो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे। द प्रो न्यूक्लियाई अप्रोच टुगेदर, अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स बिटवीन देम। अब माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो रहा है ताकि इन दोनों के बीच का क्रोमोसोम एक्सचेंज हो जाए। आपने 11th स्टैंडर्ड के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि व्हेन द माइटोटिक स्पिंडल इज अरेंज्ड, the sister chromatids of the chromosomes they are pulled towards the pole। और जब सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल की तरफ खींची जाती है तो 2 क्रोमोसोम्स मतलब अलग अलग क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव टू बी ऑलवेज पेयर्ड। ओके, सो यहाँ पर मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स पेयर हो जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे और दे विल बिकम द पेयर। ऑलराइट, एंड नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप। See, as you can see, there is a presence of centriole because of which mitotic spindle is taking place. Always remember, अगर centriole नहीं है तो mitotic spindle नहीं बनेगा, मतलब आपका meiosis stage कभी complete ही नहीं होगा। And the last stage is chromosome of both pronuclei, they intermix, and once the chromosomes are intermixed, you can say that the fertilization process is accomplished. So अगर short में समझने जाएं तो आपने fertilization समझ लिया है, but it is not that easy जितना इस डायग्राम में लग रहा है। It is a little bit complicated. So let's begin with our actual mechanisms which is involved in fertilization. I hope you are ready to understand this. It's simple,
बस थोड़ा सा डिटेल में है, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. ऑल राइट, सो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड mechanism of fertilization. Okay. Semen released during ejaculation. What is semen? When sexual intercourse takes place, तो मेल के पीनस में से जो फ्लूइड निकलता है, जो वजाइना में एंटर करता है, उस वाइटिश फ्लूइड को हम बोलते हैं सीमेन. और उस सीमेन में बहुत कुछ है. उस सीमेन में फ्रुक्टोज है, उस सीमेन में स्पर्म्स हैं, उस सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उसमें बहुत कुछ है. कॉपर्स ग्लैंड ने अपना कुछ फ्लूइड दिया है. सो द सीमेन कंटेन्स अ लॉट मेनी थिंग्स. सो सीमेन रिलीज्ड ड्यूरिंग ejaculation, ejaculation means release, has sperms and some secretions, मतलब it contains some fluids. The coagulated semen now undergoes liquefaction and sperms become active. जब ये सीमेन रिलीज होता है, पेनिस से निकलता है, तब वो थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन जैसे वो वजाइना एंटर करता है तो वो वजाइना में एंटर करते ही थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है. मतलब उसका जो कोएगुलेशन है, उसकी जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी थोड़ी सी थिन हो जाती है. इट लिक्विफाइज अ लिटिल बिट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सीमेन चेंजेस. जब तक वो पेनिस के अंदर था सीमेन, तब तक उसका टेम्परेचर अलग था. जैसे वो वजाइना में एंटर करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो जो सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस है सीमेन, वो थोड़ा सा लिक्विफाइड हो जाता है. और एक बार अगर सीमेन लिक्विफाइड हो जाएगा तो उसके अंदर के जो स्पर्म्स हैं, दे विल नाउ बी एबल टू मूव इजीली. The mechanism of fertilization is as follows. So now we have to understand the steps given below. First mechanism or first step to understand the process of fertilization is movement of sperm towards egg. Sperm को हमको egg तक पहुंचाना है. क्यों? Because sperm is motile but egg is non-motile. Okay? ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था that eggs are non-motile. जैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, let me show you with the help of a diagram. समझो यहाँ पर ओवरी है, these are the fallopian tubes and this is the uterus, this is the vagina. यहाँ से sperm आ रहा है और यहाँ से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे सीलिया है, यहाँ पे सीलिएटेड हेयर है, तो ये सीलिएटेड हेयर oocyte को पुश करेंगे. लेकिन वो कितना पुश करेंगे? पुश कर करके भी हमारा सेकेंडरी oocyte ओवरी से लेकर एम्प्यूला तक ही ट्रैवल कर पाता है. जब तक oocyte एम्प्यूला तक ट्रैवल करता है, तब तक ये स्पर्म स्विम कर करके oocyte तक पहुंच जाता है. ओके, सो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग. लेकिन स्पर्म डायरेक्टली मूव नहीं हो सकता, हमको स्पर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है. और यू कैन से वी हैव टू इंक्रीज द एनर्जी एंड वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म टू स्विम इन द वजाइनल कैविटी. ओके, so it involves capacitation. Capacitation means what? Increasing the speed of the sperm. Okay, it involves capacitation of sperm reaching the vagina. जैसे ही स्पर्म वजाइना के अंदर जाता है, उसको कैपेसिटेट कर दिया जाता है. कैपेसिटेट मतलब उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर दिया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इट सम फ्लूइड्स. वजाइनल सेक्रीशन से जो इंपॉर्टेंट लिक्विड या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के वजह से स्पर्म की स्पीड फास्ट हो जाती है. एक्चुअली इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लेकिन आपको अभी उस टॉपिक को मतलब इट डजंट कंसर्न दैट मच टू यू. सो यू जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट स्पर्म डायरेक्टली ओवा तक नहीं पहुंचता है, पहले स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है. कैपेसिटेशन मीन्स जैसे कि गाड़ी डायरेक्टली आप नई गाड़ी लेकर आते हो तो वो तुरंत चलना नहीं चालू कर देती है ना, उसमें पहले फ्यूल भरना पड़ता है. वैसे ही स्पर्म को पहले उसकी एनर्जी बढ़ानी होती है, उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, तभी वो oocyte तक पहुंचता है. Here as many as 50% are demotilized, broken और destroyed. जब पीनस से सीमेन निकलता है तो कुछ 2 to 4 ml सीमेन निकलता है. वजाइना में समझो 2 ml सीमेन एंटर किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा 2 ml सीमेन और वो पूरे के पूरे 200 या 400 मिलियन स्पर्म ओवा तक पहुंचे. 50% स्पर्म्स वहीं पर डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन pH, लेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वट एवर कैन बी द रीजन. सो 50% स्पर्म्स आर डीमोटिलाइज्ड ओवर देयर. रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो कैपेसिटेशन. सिर्फ बचे हुए स्पर्म्स को हम इंप्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 5 to 6 hours. ओके, एक्रोसोम मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म. एक्रोसोम मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है? स्पर्म हेड में. Acrosome membrane of the sperm, wait a second,
या एक्रोसोम मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म बिकम्स थिन. समझो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. यहाँ पर एक्रोसोम मेम्ब्रेन है और यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर फिलामेंट्स हैं, एक्सियल फिलामेंट. सो दिस एक्रोसोम मेम्ब्रेन विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम थिन, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्रोसोम मेम्ब्रेन थिन होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड अंदर आएगा. जितना ज़्यादा फ्लूइड अंदर आएगा मतलब जितना ज़्यादा कैल्शियम स्पर्म के अंदर जाएगा उतना ज़्यादा कैल्शियम स्पर्म एक्टिवेट होगा और जितना ज़्यादा स्पर्म एक्टिवेट होगा उतनी स्पीड से वो भागेगा. सो द एक्रोसोम मेम्ब्रेन बिकम्स थिन बिकॉज कैल्शियम एंटर्स इनटू द स्पर्म and their tails begin to show rapid whiplash movement. जैसे जैसे कैल्शियम अंदर आता है स्पर्म के, यहाँ पर समझो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में से कैल्शियम स्पर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है. ये कैल्शियम जैसे अंदर आता है तो उसकी जो टेल है, स्पर्म की जो टेल है वो विप्लैश मूवमेंट दिखाने लग जाती है. विप्लैश मूवमेंट मतलब ऐसे 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 करके स्विम होती है. पहले स्पर्म सिर्फ ऐसे ऐसे स्विम हो रहा था, अब उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे भागता है और वो सर्कुलर मूवमेंट से आगे भागता है. मतलब द स्पर्म मूव्स समवट इन दिस मैनर, ऐसे गोल 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 घूम के. स्पर्म कभी सीधा नहीं जाता है, स्पर्म गोल 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 घूम के आगे जाता है. ओके, सो दैट इज नोन एज द विप्लैश मूवमेंट. ऑलराइट, let's move ahead. Okay, this box, it's a common box for information. General information is given over here that the marriageable age for boy is 21 year and the marriageable age for girl is 18 years. These are the legal ages. इससे छोटी उम्र के लड़के या लड़कियां शादी नहीं कर सकते. It is against the law. If you find any such activity going on, you can report a complaint against. सो एज अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेशन, मतलब हमने क्या किया, हमने स्पर्म की स्पीड बढ़ा दी, कैल्शियम उसके अंदर एंटर हुआ तो स्पर्म विप्लैश मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करने लगा. सो स्पर्म्स बिकम एक्स्ट्रा एक्टिव बिकॉज ऑफ कैपेसिटेशन एंड दे बिगिन टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम वजाइना टू द यूटेरस, जहां पर ओवरी है, मतलब जहां पर ओवरी नहीं, जहां पर आपका oocyte है, एंड टू द ओविडक्ट्स दैट इज नियर द एम्प्यूला. स्पर्म को पता है कि उसको कहाँ जाना है क्योंकि सेकेंडरी oocyte के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. वी विल कम टू इट लेटर. द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट द स्पर्म. स्पर्म के प्रोस्टेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोस्टेट ग्लैंड था, उस प्रोस्टेट ग्लैंड से जो इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकले थे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहे हैं, वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म्स. The vestibular secretions, vestibular means female fluid. The vestibular secretions of the female also enhance sperms. मतलब basically focus क्या होता है, बॉडी में जैसे स्पर्म एंटर कर रहा है, मेल फ्लूइड जो सीमन के साथ आया है वो भी स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और अभी स्पर्म फीमेल बॉडी में है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे भी 24 आवर्स के पहले वो ओविडक्ट तक पहुंच जाए, oocyte तक पहुंच जाए, क्योंकि ओवम सिर्फ 24 आवर्स तक ही वायबल रह सकता है. आफ्टर 24 आवर्स द ovum or the female gametes becomes non-viable, unviable. Okay, the sperms swim at an average rate of 1.5 to 3 millimeters per minute. You need to underline this, it is an important line to remember. Okay, sperms reach up to the ampulla as a result of their own swimming and partly by contraction of uterus and fallopian tubes stimulated by oxytocin of female. मतलब हमको क्या बताया गया यहाँ पर कि 90% स्पर्म जो ओविडक्ट तक पहुँच रहा है वो खुद की मेहनत से पहुँच रहा है क्योंकि वो खुद स्विम करता है, लेकिन जो 10% का एफर्ट है वो 10% एफर्ट कौन डाल रहा है, यूटेरस डाल रहा है. क्योंकि यूटेरस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. क्योंकि यूटेरस के वॉल में कौन से सेल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम है जो यूटेरस को और ओविडक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है. हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था. सो फाइनली स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंच गया है, एम्प्यूला तक पहुंच गया है, जहां पर स्पर्म का वेट कौन कर रहा है, ओवम. Sperms can remain, after capacitation, the sperms may reach ampulla within 5 minutes. मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी में आया, उसको कैपेसिटेशन करने के लिए समझो 5 to 6 आवर्स लगा. 5 to 6 आवर्स के बाद स्पर्म जब रेडी हो जाता है तो वो रेडी होते ही उसको एम्प्यूला तक पहुंचने में सिर्फ कितना टाइम लगता है, 5 मिनट. मतलब कैपेसिटेशन करने के लिए 5 घंटे और कैपेसिटेशन करने के बाद एम्प्यूला तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट.
Sperms can remain viable for 24 to 48 hours, but ovum remains viable only for 24 hours. So अगर successful fertilization कराना है तो 24 hours के अंदर हो जाना चाहिए, otherwise the ovum is of no use. Okay, all right, let's move ahead. Now comes the second step of the mechanism. पहला step था entry of sperm. Now comes entry of sperm into the egg. पहला स्टेप था मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और अब ये दूसरा स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म. पहले स्टेप में हमने स्पर्म को वजाइना से ओविडक्ट तक पहुंचाया, अब सेकेंड स्टेप में हम स्पर्म को oocyte के या ओवम के अंदर पहुंचाएंगे. ओके, सो नाउ पे अटेंशन. Out of 200 to 400 million sperms, only few hundred sperms they manage to reach ampulla. मतलब वजाइना में 400 मिलियन स्पर्म आए, उसमें से 50% डीमोटिलेटेड कर दिए गए, सिर्फ 50% बचे. उन 50% को कैपेसिटेट किया गया, तो कैपेसिटेट करके एम्प्यूला तक कुछ 100 स्पर्म्स पहुंचे. अब उन कुछ 100 स्पर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले ओवम के अंदर जाएगा. ओके, दो मेनी स्पर्म्स रीच द एम्प्यूला, बहुत सारे स्पर्म्स एम्प्यूला के पास पहुंचते हैं. मतलब समझो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज यूटरस, दिस इज एम्प्यूला. यहां पर बहुत सारे, ये आपका सेकेंडरी oocyte है, दिस इज द एम्प्यूला रीजन. यहां पर बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचेंगे. ओके, मेनी स्पर्म्स रीच एम्प्यूला. अ स्पर्म, though many sperms reach ampulla, only a single sperm can fertilize the ovum. A sperm after reaching the egg or the ovum comes to lie against it. अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ, कि जैसे स्पर्म ओवा के पास पहुंच जाता है, वो ओवा के बाजू में अरेंज हो जाता है. नाउ प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली. दिस इज द, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ओके, ऑल राइट. अब क्या बोलने जा रही हूं मैं, कि हमारे ओवम के पास, ओवम का जो जोना पेल्यूसिडा वाला लेयर है, कौन सा लेयर? जोना पेल्यूसिडा लेयर. जोना पेल्यूसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा है. क्या है? कोरोना रेडिएटा है. ठीक है, इस जोना पेल्यूसिडा लेयर के पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं. क्या है इस जोना पेल्यूसिडा के पास? रिसेप्टर प्रोटीन्स. मतलब इमेजिन करो कि इसके ऊपर ऐसे एक एंटीना लगा हुआ है, रिसेप्टर्स हैं जोना पेल्यूसिडा के ऊपर. ठीक है, जो ऐसे कोरोना रेडिएटा के बीच बीच से निकलेंगे. सो जोना पेल्यूसिडा हैज रिसेप्टर प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन. क्या बोलेंगे हम इनको? फर्टिलाइजिन. और स्पर्म के ऊपर है एंटी फर्टिलाइजिन. स्पर्म के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनको आप बोलोगे एंटी फर्टिलाइजिन. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पर्म को कैसे पता चलता है कि उसको कौन से एम्प्यूला के पास जाना है, राइट एम्प्यूला कि लेफ्ट एम्प्यूला, क्योंकि एवरी मंथ में एक बार लेफ्ट ओवरी से oocyte आता है और एक बार राइट ओवरी से oocyte आता है, और स्पर्म के पास बहुत कम टाइम है. ठीक है, तो स्पर्म को कैसे पता चलता है कि उसको कहाँ जाना है? क्योंकि ओवा के पास एंटीना होता है, मतलब ओवा के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन. ये रिसेप्टर कहाँ पर है? ये रिसेप्टर जोना पेल्यूसिडा के लेयर में है. ये रिसेप्टर स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है. मतलब ये प्रोटीन्स स्पेसिफिकली स्पीशीज रिलेटेड है. जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन एग के ऊपर जो प्रोटीन होगा, जो फर्टिलाइजिन होगा, जो एंटीना होगा, ह्यूमन स्पर्म के ऊपर उसका अपोजिट रिसेप्टर होगा, मतलब एंटी फर्टिलाइजिन होगा, और दोनों का प्रॉपर मैच बनेगा. अगर ह्यूमन ओवा को किसी एनिमल स्पर्म के साथ हम फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ अनसक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन अगर कराना है या कंपैटिबिलिटी टेस्ट अगर करना है तो यू हैव टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन. स्पर्म के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको हम बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिन, और ओवा के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजिन. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द थ्योरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. ओके, अ स्पर्म आफ्टर रीचिंग द एग ovum comes to lie against it. Its acrosome releases lysines. स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम लेयर था, उस एक्रोसोम के अंदर क्या थे?
ह्यालुरोनिडेज एंजाइम। क्या थे? ह्यालुरोनिडेज एंजाइम। और हमको पता है ह्यालुरोनिडेज क्या करेगा? ह्यालुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी चीज को कट करना, इसीलिए हम एंजाइम को बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। ह्यालुरोनिडेज ह्यालुरोनिक एसिड को कट करेगा, तो ह्यालुरोनिक एसिड कहां पर है? इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, ह्यालुरोनिक एसिड इज प्रेजेंट बिटवीन ज़ोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। क्योंकि कैसा है पता है, आपका जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं। इन सारी लेयर्स को ब्रेक करते हुए जो स्पर्म सबसे पहले अंदर पहुंचेगा, दैट विल बी द विनर। ओके, सो द एक्रोसोम कंटेन्स लाइसिन्स एंड ह्यालुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, क्योंकि इनको कोरोना रेडिएटा को भी ब्रेक करके जाना है और कोरोना रेडिएटा के बाद जो ज़ोना पेल्यूसिडा है उस ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर को भी ब्रेक करके फिर अंदर घुसना है। ठीक है, दे सेपरेट एंड डिसॉल्व द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये एक्रोसोम में से जो फ्लूइड निकलता है, सपोज दिस इज स्पर्म, दिस इज द हेड, ये एक्रोसोम में से जो फ्लूइड निकलेगा, ये फ्लूइड क्या करेगा? ये हमारे ओवा के कोरोना रेडिएटा सेल्स को सबसे पहले डैमेज करेगा। फिर कोरोना रेडिएटा सेल्स के अंदर क्या है? ज़ोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, सो पहले कोरोना रेडिएटा को डैमेज करेगा, फिर ज़ोना पेल्यूसिडा के पास जो रिसेप्टर्स है उसके साथ अटैच हो जाएगा। They separate and dissolve the cells of corona radiata, so the sperm head passes through the zona pellucida of egg. The zona pellucida has fertilin receptor protein. Zona pellucida के पास क्या है? Fertilizin receptor protein, ZP3 and ZP2. ये जो receptor proteins हैं, they are either ZP3 और ZP2, कोई भी हो सकते हैं। The fertilizin binds to specific acid proteins, एंटी फर्टिलाइजिन, ओके, ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पास जो रिसेप्टर है उसको हमने बोला एंटी फर्टिलाइजिन, ओवा के पास जो रिसेप्टर है उसको हमने बोला फर्टिलाइजिन। इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स टू द एग, और ये इसके वजह से क्या हो रहा है? ओवा के जो रिसेप्टर्स है वो स्पर्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स टू द एग टू एनहांस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन बोला मैंने? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक, thus fertilizing and anti-fertilizing reaction is also known as what? Compatibility reaction, to check whether the human sperm is fusing with human oocyte. अगर ये रिसेप्टर्स बाइंड हो गए तो फ्यूजन सक्सेसफुल होगा, और अगर फ्यूजन सक्सेसफुल हुआ इट मीन्स दैट द स्पीशीज वाज सेम। ओके, एंड इफ यू ट्राई टू एंटर अनरिलेटेड स्पीशीज का गैमेट, then there are chances that it will not show fertilization. All right, okay, now comes the third step, that is acrosome reaction. Okay, let me just clear the board first. Okay, what is being told over here in acrosome reaction? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक्रोसोम कहाँ से बनता है, कौन से सेल ऑर्गेनल से बनता है एक्रोसोम? यस पीपल, टेल मी, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन कि एक्रोसोम कैसे बना। मैंने ये बार बार बोला था आपको जब मैं पढ़ा रही थी, याद रखने के लिए कि एक्रोसोम कौन से सेल ऑर्गेनल से बनता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, डू नॉट फॉरगेट। ओके, लेट्स हैव सम फन। All right, so let's understand what happens in acrosome reaction. As the sperm head touches the zona pellucida in the animal pole region, now you remember last lecture में मैंने आपको बोला था कि आपका जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के नीचे जहाँ पर आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी और आपका जर्मिनल वेसिकल होता है, दोनों को मिला के एनिमल पोल बनता है। और मैंने आपको तभी ये भी बताया था कि एनिमल पोल का यूज़ क्या है। एनिमल पोल एंश्योर्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को अगर एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेनी होगी? एनिमल पोल से। और एनिमल पोल का जो अपोजिट एंड होता है वो एंड कौन सा होता है? वेजिटल पोल। ओके, सो the sperm enters into the ova, it touches the zona pellucida in the animal pole region, its acrosome covering ruptures to release lytic enzymes.
स्पर्म का जो ऊपर का मेम्ब्रेन है एक्रोसोम, जो कैप जैसा स्ट्रक्चर था, समझो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये कैप जैसा स्ट्रक्चर था, तो ये ओवा के अंदर जाने के लिए अपना सारा कंटेंट रिलीज कर देगा और रप्चर हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी एंजाइम थे वो सारे रिलीज हो जाएंगे ताकि ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर खुल जाए और स्पर्म अंदर जा सके। ओके, ऑलराइट। इट रिलीजेस लाइटिक एंजाइम्स नोन एज एक्रोजिन और जोनालाइसिन, क्योंकि ज़ोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करना है तभी वो ऊ साइड तक पहुंचेगा, मतलब तभी वो एग के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। और फर्टिलाइजेशन का गोल क्या होता है? न्यूक्लियस को कंबाइन करना, तभी फ्यूजन होगा। They act on the zona pellucida at the point of contact. This causes egg reaction. A small fertilization cone or cone of reception is formed on the egg membrane. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से। This is the egg and suppose this is the zona pellucida layer. Okay. यहाँ पर सपोज इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका फर्स्ट पोलर बॉडी था और यहाँ पर आपका जर्मिनल वेसिकल है। सो आपका जो स्पर्म है वो स्पर्म यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। द स्पर्म इज ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम वेजाइटल पोल। जब ये वेजाइटल पोल से एंटर करेगा तो यहाँ पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है ताकि स्पर्म को अच्छे से एंट्री मिले, एंड दैट कोन इज नोन एज कोन ऑफ रिसेप्शन, बिकॉज रिसेप्शन मीन्स व्हाट? एक्सेप्टिंग। सो सेकेंडरी oocyte इज एक्सेप्टिंग द स्पर्म, इसीलिए वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ताकि स्पर्म का जो कोनिकल हेड है वो आसानी से अंदर जा सके। द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस कोन, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ अ वीक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब हमारा स्पर्म इस कोन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो अभी देखो आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। समझो एक ऐसा पजल कार्ड इमेजिन करो, आपने ऑलरेडी 10 पजल्स अरेंज किए हैं, मतलब 10 क्यू कार्ड्स अरेंज किए हैं। अब वहाँ पर स्पेस नहीं है कहीं पर कोई चीज़ घुसाने के लिए, लेकिन आप बीच में ज़बरदस्ती एक स्टिक घुसा रहे हो तो बाकी के आजू बाजू के कार्ड्स हिल जाएंगे। या ऐसा इमेजिन करो कि 4 लोग ऐसे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर बीच में कोई तीसरा इंसान घुसने की कोशिश करेगा तो बाकी के लोगों को हिलना पड़ेगा, मतलब बाकी के लोगों में मूवमेंट दिखाई देगी। और वही होता है यहाँ पर भी। जैसे स्पर्म कोनिकल रिसेप्शन में एंटर करता है, कोन ऑफ रिसेप्शन में एंटर करता है, ज़ोना पेल्यूसिडा में थोड़ी सी मूवमेंट होती है और यहाँ पर जो एनिमल पोल था और ये ऊपर की तरफ जो वेजिटल पोल था ये थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके। सो यू कैन सी अ लिटिल डीपोलराइजेशन टेकिंग प्लेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल्स डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस टाइम पे ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है और ज़ोना पेल्यूसिडा के अंदर जो वाइटलिन मेम्ब्रेन था वो वाइटलिन मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाता है क्योंकि स्पर्म को टोटली oocyte के अंदर पहुंचना है। ओके, द स्पर्म न्यूक्लियस, नाउ दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। स्पर्म अंदर चला गया है, उसका एक्रोसोम पहले ही खत्म हो गया है, तो अब स्पर्म के पास क्या बचा? सी दिस इज स्पर्म, यहाँ पर एक्रोसोम था और यहाँ पर न्यूक्लियस था, एक्रोसोम खत्म हो गया, अब सिर्फ क्या बचा? न्यूक्लियस बचा। द स्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस के नीचे जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, द सेंट्रियोल्स दे एंटर द एग। और आपको पता ही है सेंट्रियोल्स जब एग के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और आपका ओवम तब रेडी होगा फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके पहले तक आपका ओवम इनकम्प्लीट है, ठीक है। जब तक स्पर्म का सेंट्रियोल ओवम के अंदर नहीं घुस जाता तब तक आपका फीमेल गैमेट रेडी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो द स्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल दे एंटर द एग while other parts remain outside। सिर्फ स्पर्म का इतना पार्ट, मतलब ये सेंट्रियोल वाला पार्ट अंदर जाएगा, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के फिलामेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैम जो जाइगोट बनता है फिर उस जाइगोट में किसका माइटोकॉन्ड्रिया आता है? तो उस जाइगोट में फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया आता है क्योंकि ओवा का माइटोकॉन्ड्रिया तो उधर ही है, ठीक है, जो एनर्जी दे रहा है ओवा को। और स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए थी? सिर्फ ओवा तक पहुंचने के लिए। जब वो ओवा तक पहुंच गया है तो अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। सो याद रखो ये एंट्रेंस क्वेश्चन है कि जाइगोट में या प्रोजेनी में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें किसका माइटोकॉन्ड्रिया आता है? फीमेल का। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। As soon as the sperm head
touches the vitelline membrane. See, this is your ova. Ova के अंदर क्या है? वाइटलिन मेम्ब्रेन है. यहाँ पर वाइटलिन मेम्ब्रेन है और यहाँ पर आपका जर्मिनल वेसिकल है. ठीक है. सो जैसे ही आपका स्पर्म सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक. ठीक है. जैसे ये वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच करेगा, अब कॉर्टिकल रिएक्शन गेट्स एक्टिवेटेड. एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. कॉर्टिकल मीन्स वाइटलिन मेम्ब्रेन से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है which changes the vitelline membrane into a fertilization membrane by deactivating the sperm receptors of zona pellucida. देखो क्या बोल रही हूँ मैं. ओवा के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन थे, वो किस लिए थे? स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए. अब एक स्पर्म तो ऑलरेडी ओवा तक घुस गया है ना, तो अब वो रिसेप्टर्स का कुछ काम है क्या? नहीं. तो जैसे ही स्पर्म सक्सेसफुली ओवा के अंदर पहुंच के वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच करता है, तो ये बजर जैसा काम करता है कि जैसे ही स्पर्म वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच करेगा, ओवा के ऊपर के जितने भी रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो अंदर आ जाएंगे या वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ओवा के ऊपर से निकल जाएंगे. क्योंकि अब हमको उस रिसेप्टर की या उस एंटीना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए था, जो स्पर्म चाहिए था, वो स्पर्म ओवा के अंदर आ गया है. अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर वो रिसेप्टर नहीं गया तो क्या होगा? कम ऑन टेल मी. अगर वो रिसेप्टर नहीं गया तो यू कैन आंसर दिस इन योर कमेंट सेक्शन. तो क्या होगा कि मल्टीपल स्पर्म्स अंदर आने के चांसेस है, क्योंकि जब तक एंटीना लगा रहेगा तब तक स्पर्म अट्रैक्ट होते रहेंगे. जब तक वो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिसेप्टर लगा है ओवा के ऊपर, तब तक स्पर्म्स अट्रैक्ट होंगे. तो एक बार अगर स्पर्म अंदर आ गया है एंड वी डोंट नीड अदर स्पर्म्स टू कम इनसाइड, ताकि पॉलीएम्ब्रियोनी ना हो, इस वजह से वाइटलिन मेम्ब्रेन एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जो जोना पेल्यूसिडा के ऊपर के सारे एंटीना को डिसॉल्व कर देता है. क्या बोल रही हूँ मैं? दिस इज द ओवा. इसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो एंटीना थे, ये एंटीना स्पर्म को अट्रैक्ट कर रहे थे. ठीक है. लेकिन एक बार एक स्पर्म अंदर घुस गया और उसने वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच कर दिया, तो ये वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये वाइटलिन मेम्ब्रेन ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी जो इन एंटीनास को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अब हमको नेक्स्ट स्पर्म नहीं चाहिए. एक स्पर्म आ गया ना तो सक्सेसफुल फ्यूजन हो गया. A distinct pre-vitelline space is created around the fertilization membrane. Fertilization membrane मतलब यही वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब ये जोना पेल्यूसिडा और वाइटलिन मेम्ब्रेन के बीच में जो प्री वाइटलिन स्पेस थी, वो स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि गलती से समझो जोना पेल्यूसिडा का कोई एंटीना बच भी गया तो वो स्पर्म के अंदर आ भी गया तो वो ओवा के अंदर तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में बहुत स्पेस बन जाती है. ओके. सो अ डिस्टिंक्ट प्री वाइटलिन स्पेस इज क्रिएटेड. गैप बना दिया जाता है कि अगर स्पर्म अंदर आ भी रहा है तो वो समझो यहाँ पर वाइटलिन मेम्ब्रेन और यहाँ पर ओवा है. पहले इतना डिस्टेंस था, लेकिन अब डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि स्पर्म जो बाहर से आ भी रहा है तो वो अंदर तक ना पहुँच पाए और पहले ही फ्यूजन हो जाए. दिस प्रिवेंट्स एनी फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म. ओके. सो कंक्लूजन अपना कि एक बार आपका प्रोटीन निकल गया, फर्टिलाइजर निकल गया और स्पेस बढ़ गया, तो उससे क्या होगा कि आगे कोई एक्स्ट्रा स्पर्म एंटर नहीं करेगा और जिसके वजह से पॉलीस्पर्मी सिचुएशन विल बी अवॉइडेड. मतलब मल्टीपल स्पर्म्स विल नॉट एंटर इनटू द oocyte. ओके. ओके. सो नाउ कम्स द थर्ड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम. पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं ऊपर के क्वेश्चन का आंसर्स दे दूंगी आपको जो बॉक्स में क्वेश्चन दिया गया है. ऑल राइट. सो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में क्या होगा? वेरी सिंपल. स्पर्म आ गया ओवा के पास, उसने अपना सेंट्रियोल दिया, तो ओवा जो मेटाफेज 2 में अटक गया था, अब वो उसका मेटाफेज 2 रिज्यूम हो जाएगा और उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा. मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो आपको ओवम मिलेगा और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगी. ओके. सो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन वॉज एट मेटाफेज 2 स्टेज. With a contact of sperm head to the vitelline membrane of egg, it gets activated to resume and completes its meiosis 2. With this, it gives out what? It gives out second polar body. The germinal vesicle organizes into female pronucleus. तो आपका जो germinal vesicle है वो क्या बन जाएगा? अब वो प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, क्योंकि
पहले आपका सेकेंडरी oocyte मेच्योर नहीं था, इसीलिए न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं था। अब आपके सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, मतलब सेकेंडरी oocyte इज नाउ मेच्योर, सो उसका जर्मिनल वेसिकल क्या बन गया, मेच्योर न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्रोन्यूक्लियस। और हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा था कि जब प्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं तो मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। ओके, एट दिस स्टेज इट इज द ट्रू ओवम और एग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट that after your ovum is activated you get your mature ovum which is absolutely ready for the fertilization or fusion. So ultimately the next step is fusion of egg and sperm. The covering of male and female pronuclei degenerate, मतलब imagine as this is the secondary oocyte, यहाँ पर मेल प्रोन्यूक्लियस और यहाँ पर फीमेल का प्रोन्यूक्लियस, इनका जो आउटर कवरिंग है ये डीजेनरेट हो जाएगा और इनके अंदर के जो क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट है वो मिक्स हो जाएंगे। सो द कवरिंग डीजेनरेट्स एंड इट अलाउज द क्रोमोसोमल पेयरिंग। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनकारियन। सिनकारियन मीन्स करियो मीन्स न्यूक्लियस and syn means mixing. So this means mixing of nucleus, and mixing of nucleus means mixing of chromosomes, mixing of DNA. Father का half DNA, mother का half DNA will form child's complete DNA. Okay, so this results in the formation of synkaryon by the process of fertilization, or you can say fusion of egg and sperm by the process called syngamy or karyogamy. Karyo means nucleus and gamy means gamete. So when two gametes का nucleus fuse together, it is known as karyogamy. The zygote is formed. The proximal centriole received from the sperm. Sperm के पास जो दो centriole थे, ऊपर की तरफ जो centriole था that was proximal, नीचे की तरफ जो centriole था that was distal. So the proximal centriole which was received from the sperm, it helps in the formation of synkaryon spindle and cleavage of cell into two blastomeres. मतलब ये क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसा इमेजिन करो कि आपका फ्यूजन हो चुका है। इमेजिन दैट दिस इज द जाइगोट, ओके, जहाँ पर मेल और फीमेल न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक सिंगल न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब इस सिंगल न्यूक्लियस के अंदर जो मेल का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक स्पिंडल फाइबर बना देगा, ताकि आपका जो जाइगोट है, आपका ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट दो सेल्स में डिवाइड हो जाए, और इन सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर, जो आप इसके इमीडिएट नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ सेल्स। ओके, जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। सो वो ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये आपका स्पर्म है, स्पर्म के पास दो सेंट्रियोल थे, एक यहाँ एक यहाँ। ऊपर वाला सेंट्रियोल का कुछ काम नहीं था स्पर्म में, नीचे वाला सेंट्रियोल क्या बना रहा था, नीचे वाला सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलके फिलामेंट्स बना रहा था, एक्सियल फिलामेंट, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कुछ काम नहीं कर रहा था। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम कब होगा, जब जाइगोट बन जाएगा, ताकि वो सेंट्रियोल क्या कर सके, वो सेंट्रियोल जब जाइगोट बन जाएगा तो वो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाएगा और अब जाइगोट के अंदर वो सेल्स को डिवाइड करेगा ताकि एम्ब्रियो बने, क्योंकि जाइगोट बनता है फ्यूजन से ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और फिर जाइगोट डेवलप होके बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन होने के लिए स्पिंडल फाइबर बनने चाहिए, स्पिंडल फाइबर बनने के लिए वी नीड सेंट्रियोल्स। ओके, ऑल राइट, नाउ कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट पार्ट। आपको टॉपिक समझा है कि नहीं समझा है वो यहाँ पता चल जाता है। आई यूजुअली डोंट believe in teaching this part. I expect students to read it on their own so that they can come to know कि उनको टॉपिक समझा कि नहीं समझा। So let us quickly go through it. Significance मतलब uses of fertilization. Secondary oocyte completes the process of oogenesis. Yes, क्योंकि मेल स्पर्म आया, उसने अपना सेंट्रियोल दिया, तो सेकेंडरी oocyte का meiosis 2 complete हुआ, and it is transformed into a mature ovum, haploid. The diploid chromosome number is restored in the zygote. मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब हेप्लॉइड फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है, करेक्ट, by the process syngamy which is fusion of gametes. The ovum lacks the centrioles. जो ओवम बना है फीमेल ओवम, उसके पास सेंट्रियोल नहीं है,
सेंट्रियोल होता तो पहले ही मियोसिस 2 हो जाता ना, सिंपल. So the ovum lacks the centriole which is necessary for further division and that is why it is important कि sperm आए. अगर ओवम के पास खुद के पास सब कुछ होता तो कभी मेल स्पर्म की ज़रूरत पड़ती नहीं. So that is why this is the game of nature कि फीमेल गैमेट को मेल गैमेट की ज़रूरत पड़े, इसीलिए फीमेल गैमेट के पास सेंट्रियोल नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है तो आगे डिवीजन होना पॉसिबल ही नहीं है. The ovum lacks the centriole necessary for further divisions for the formation of embryo. And that centriole is received from sperm during fertilization. And the last point is fertilization involves fusion of male and female gametes from two parents. Obviously, it results in variations which are significant to evolution. आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा अपने मम्मी और पापा के जैसा exactly नहीं दिखता है, ओके क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ जीन्स हुए हैं, मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम हुए हैं. सो कुछ कैरेक्टर्स मदर के और कुछ कैरेक्टर्स फादर के आएंगे और बच्चा दोनों से अलग दिखेगा. एंड दैट इज वेरिएशन, दैट इज इवोल्यूशन. एंड वंस फ्यूजन टेक्स प्लेस यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस कि बच्चा मेल है या फीमेल है व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस क्विकली. दिस क्वेश्चन दैट, वन सेकेंड, yeah, which I halted for a second. What would happen if sperm fuses with the egg before it reaches the fallopian tube? क्या होगा sperm fallopian tube तक पहुंचने से पहले ही, मतलब समझो कि ये आपका यूटरस है और ये fallopian tube है, तो समझो sperm यहाँ आ गया और यहाँ पर egg है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. एग एम्प्यूला तक नहीं पहुंच पाया तो ये रेयर कंडीशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एम्प्यूला तक अगर एग नहीं पहुंच पाया और स्पर्म पहले एग तक पहुंच गया, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स के सीलिया हैं वो ओवा को एम्प्यूला के पास पुश करेंगे और फिर एम्प्यूला से फंडस के पास, और वहीं पर वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन स्टार्ट करेगा. ओके, सो नथिंग irregular or abnormal will happen. There will be normal fusion taking place in this section. Okay, and what will happen? Sorry, what is the next question? What is ectopic pregnancy? Ectopic means outside uterus. हमको पता है कि ये सारा फर्टिलाइजेशन या जो भी है, एम्ब्रियो बनना या जाइगोट बनना, ये कहाँ पर हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, मतलब यूटरस के अंदर हो रहा है. लेकिन जब किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से या किसी एबनॉर्मल कंडीशन के वजह से oocyte रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर आ जाता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन के पास या कहीं पर भी, जहां पर उसको होना चाहिए वो जगह छोड़कर स्टमक के कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में जब कहीं और वो oocyte आ जाता है और वहां पर स्पर्म जाके जब उसको फर्टिलाइज कर देता है, तब उस कंडीशन में दैट इज अ वेरी रिस्की केस ऑफ प्रेगनेंसी विच कैन कॉज अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ऑफ द मदर एंड विच इज वेरी अनरिस्की फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर एज वेल एज फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. सो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट अ साइट अदर देन यूटरस, मतलब यूटरस को छोड़ के कहीं और पे जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे. And can ectopic pregnancy continue up to the full term? 100% में से 1 या 2% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक या मैक्स टू मैक्स 37 वीक्स आई कैन से 37 वीक्स तक चल जाता है, लेकिन जब उनका जेस्टेशन होता है या जब उनकी डिलीवरी होती है तो डेड बेबी बॉर्न होता है. सो बहुत 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 माइन्यूट चांसेस हैं ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द मदर एज वेल एज ऑफ द चाइल्ड आफ्टर they have suffered ectopic pregnancy. So it is a very risky situation and one must pray कि ऐसा situation किसी के साथ ना हो. All right, so these are the answers to your questions and let's quickly read the box given over here. Always remember, secondary oocyte is ovulated after luteinizing hormone surge at about the middle of the menstrual cycle. मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है? secondary oocyte कब निकलेगा? जब 14th डे होगा पीरियड्स का. ओके, मतलब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए. एग विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, इट रीचेज द एम्प्यूला.
so that it can attract the sperm of the uterine tube in 12 to 24 hours after ovulation. मतलब ओवरी से लेके एम्प्यूला तक पहुंचने में एग को कितना टाइम लगेगा? 12 to 24 आवर्स. और स्पर्म को वजाइना से लेकर एम्प्यूला तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे कैपेसिटेशन के लिए और 5 मिनट ट्रैवल करने के लिए. सो लुक एट द टाइम डिफरेंस. द सीलिया एंड द फिम्ब्रिए ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दे हेल्प एंड दे डायरेक्ट द एग. आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि जो फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होता है वो सीलिया एग को पुश करता है एम्प्यूला तक पहुंचने में. ड्यूरिंग कॉइटस और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स semen is deposited into the vagina. Semen enters into the vagina of the female. This process is called insemination. मतलब बॉडी में semen को इंट्रोड्यूस करना. Human male during ejaculation gives out how much of semen, like how much amount of semen? 2 to 4 ml of semen with an average count of 200 to 400 million sperms. All right. So I hope that you understood whatever we talked over here. All right. All right dear students, so I hope कि आज हमने जो भी पढ़ा the detailed concept about fertilization और syngamy as you can say, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है and what are the steps that it has to undergo. I hope that our lectures are being helpful to you and if you are liking our videos तो मुझे likes क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? Please make sure that you click on the like button once you are done with the video, once you are done watching the video, and if you like it then why hesitate sharing it? Please share it with your friends. Okay, so like the video, share it with your friends and do answer the question that I have asked in my video कि acrosome किससे बनता है. All right, you have to answer this question and make sure that you comment your opinion about the videos that we are conducting. And if you haven't subscribed to our channel yet, then needless to say, please go and subscribe to our channel. Thank you. Stay tuned. See you soon.